Hi, I'm Rupa Chatterjee, a life transformation coach. I welcome you all to this exciting journey of 30 days life transformation challenge. We can call it 30 days LTC. Today we are focusing on gaining clarity and setting our vision for our future. So let's start with exciting journey of self-discovery and transformation. Don't forget to like and subscribe to my channel to get daily updates and inspirations. Before we start, let's think back to a time when you were overwhelmed with countless options in front of you. You were very unsure of next steps. You were completely lost. You didn't know which path to follow. Exactly the same thing happened to me as well. I have witnessed the same every day, and I felt like blur with a never ending cycle of responsibilities and expectations that left me drained and directionless in life. But one fine day, when I was sitting in a quiet place, it was a park as far as I remember, I was watching the world go by. Suddenly I felt a strong urge to control my life. I quickly looked for a paper and started jotting down my thoughts. Initially, it was very messy and chaotic, like my mind, but as I continued writing, a pattern started emerging. I realized deep down I have certain dreams and desires that I had been ignoring for far too long. But with each word I wrote, I started realizing that certain things truly matter to me. Okay, and what all steps I needed to take to align my life with those values. So this was the beginning of my transformation journey. This was the first and foremost step. And it all started with finding what? Clarity. So I also want you all to experience the same with me today. I want you to help you out to experience the same thing what I have experienced in life. So we'll begin with gratitude practice first so that you have clarity of your thoughts and you can focus and can clear your minds. Then we'll dive into journaling exercises, then which will help you uncover the deepest desires and aspirations you have. Then finally we'll create a vision board which will help you as a visual reminder of the life you wanted to create always, right? So this will be the first step in our 30-day life transformation challenge, and I promise it is worth it. Let's take this first step together. Grab your diary or pen, laptop or a desktop, and let's begin this journey to a clearer and more purposeful life. So to start with, let's practice gratitude. Let's be grateful to the Almighty, to the universe for giving us all the abundance, for all the blessing, food we eat, shelter we have, uh, source of income we have. Let's be grateful for what all we have together. And last but not the least, let's be grateful for this opportunity we all are getting to transform our life. So I'll quickly share my screen. Okay. So we are here today with number one challenge. Just give me a moment. Okay, we are talking about a challenge which is lack of clarity. What is lack of clarity? Many people struggle with lack of clarity about their goals and what they want to achieve in life. This can lead to feelings of being lost and unmotivated. When you don't know where to go, you will not be motivated. You will feel a sense of, you will feel lost rather. Without a clear direction, it is challenging to make meaningful progress. You have to have a direction. Then only you can make some meaningful progress. And you may find yourself drifting without purpose. आपके पास अगर purpose नहीं है, तो you will not know where to go, why to go. Why should be clear, firstly and foremostly. Today we'll tackle this by working on defining and visualizing a goal. We will tackle this problem together today. हम देखेंगे कि आप लोगों को अगर कहीं पे भी ये प्रॉब्लम है कि अरे हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है क्या करना है इन लाइफ, सो विल टैकल दिस प्रॉब्लम टुगेदर टुडे. नेक्स्ट, ये तो चैलेंज है. व्हाट इज द सोल्यूशन? एज अ सोल्यूशन आई एम गिविंग यू विजन बोर्ड क्रिएशन. इन विजन बोर्ड क्रिएशन में यू विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स. क्या करना है? यू हैव टू गैदर इमेजेस, कोट्स, आइटम्स दैट रेजोनेट विद योर गोल्स. व्हाटएवर गोल्स और ड्रीम्स यू हैव, like you want to have a big bungalow, you want to have a big car, you want a specific job, or you want to travel abroad, or whatever dreams you have to gather images. आपको उस उन चीजों की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है. फॉर किसके लिए? विजन बोर्ड के लिए. तो पहला स्टेप यही है, गेट अ पोस्टर बोर्ड. पोस्टर बोर्ड ले लीजिए, सीजर्स, glue, magazines, printouts of these pictures, markers, and any other craft supplies you enjoy. You should be having that to create this vision board. Then what do you have to do? Set a timer. Timer लगाइए. Allocate 30 minutes for this activity. It will take 30 minutes of time initially, and it is one time task. Then collect inspiration. कहाँ से मिलेगी? Look through magazines, online resources to find images, quotes, and items that resonate with your dreams. जो आपकी ड्रीम के साथ रेजोनेट होती है या मैच होती है, यू हैव टू कलेक्ट दोज इमेजेस, दोज पिक्चर्स. ओके, देन थिंक अबाउट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. करना क्या है? करियर के बारे में सोचना है. व्हाट डू यू वांट इन योर करियर? रिलेशनशिप के बारे में सोचना, हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट टू हैव. हेल्थ कैसी होनी चाहिए? पर्सनल ग्रोथ में आपको क्या, सबके सबकी पर्सनालिटी में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपकी पर्सनली आपको क्या लगता है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरत है, उसके बारे में आपको सोचना है. एंड देन लेजर, जैसे आप घूमना फिरना ये वो, है ना, उसके लिए. तो यू शुड बी हैविंग इमेजेस, कोड्स रिलेटेड टू योर
challenge, right? Then assemble your board. Assemble करके board को glue the images. You have to paste all the images onto your board in a way that it feels right to you. आपको ठीक लगना चाहिए. आप ऐसे लगाइए कि you feel yeah, this is how it is I want, right? This board will serve as a visual reminder of your goals and aspirations. Every day you will looking at the board, it will remind you of your goals and aspirations. So board should be in such a manner, the picture should be stuck in such a manner that it shows what you should say, you feel that yes, this is the right thing I have done, this is the right way I have done, it is good for me. Fine. Then reflect. Once your board is complete, take a few moments to reflect on why these images and words resonate with you. एक बार आपने बना दिया बोर्ड, think over it. Few moments लगाइए to reflect कि ये images और ये words मेरे साथ क्यों resonate हो रहे हैं. Place your vision board somewhere you will see that daily. You will have to see the vision board daily. Otherwise there is no point. ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आपका vision board visible हो all the time. Fine. So this was about the vision board, and now we come to give me a second. Goal setting. In goal setting, write down 3 short terms and 3 long terms. अब ये short term, long term क्या होता है? Find सबसे पहले to start writing a goal, you should find a quiet space. Sit in a quiet space where you can think clearly. आपको सोचना है अपने गोल के बारे में, तो आपको एक शांत वातावरण चाहिए. You have to find a quieter place, right? आप बैठिए, सोचिए about your goals. आपको चाहिए क्या लाइफ में? Short term गोल क्या होते हैं? Write down 3 goals you want to achieve in the next 1 to 3 months. 1 से लेकर 3 महीने के अंदर कुछ आपको अचीव करना है, उसको कहते हैं short term goals. Goal should be specific, measurable and attainable. Goals ऐसे होने चाहिए कि वो specific हो. मुझे 3 महीने में या 1 महीने में, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म गोल है तो 10,000 रुपए कमाने हैं. आपको स्पेसिफिक होना कि 10,000 रुपए कमाने हैं. आप ऐसे नहीं लिखोगे मुझे 1 महीने में या 3 महीने में पैसा कमाना है. कितना पैसा कमाना है वो आपको लिखना पड़ेगा. तो स्पेसिफिक होना, मेजरेबल होना चाहिए. आपको ऐसे फिगर लिखनी है जो अटेनेबल है, जो अचीवेबल है. समझ गए? जो मेजरेबल है, जैसे 10 लिखा है, 10,000 वो मेजरेबल है. अटेनेबल है कि नहीं, ये आपके काम के हिसाब से होता है. आप ये नहीं लिख सकते मुझे 1 करोड़ रुपए 3 महीने में चाहिए या 10 लाख रुपए 3 महीने में चाहिए. वो पॉसिबल नहीं होगा शॉर्ट टर्म में, है ना? तो इसलिए गोल ऐसे हो जो शॉर्ट टर्म में 1 से 3 महीने के अंदर इट कैन बी अचीव्ड. फॉर एग्जाम्पल रीड 1 बुक पर मंथ, इट कैन बी अचीव. आपका गोल है मुझे 1 बुक पढ़नी है एवरी मंथ, तो ये हो सकता है. ठीक है, मुझे 10 बुक पढ़नी है 1 मंथ में, वो नहीं हो पाएगा. और एक्सरसाइज 3 टाइम्स वीक, जैसे आपका गोल हो सकता है मुझे 3 टाइम्स 1 वीक में 3 बार एक्सरसाइज करना ही करना है. तो इस तरह से स्पेसिफिक आपको होना है अबाउट योर गोल्स. देन लॉन्ग टर्म गोल, राइट डाउन 3 गोल्स यू वांट टू अचीव. 1 to 5 इयर्स के टाइम पे आपके जो भी गोल्स हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं, राइट? दी शुड बी ब्रॉडर एंड मोर एम्बिशियस. ये बड़े होने चाहिए सपने और मोर एम्बिशियस होने चाहिए. आपको इसके ऊपर काम भी वैसा ही करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट माई ओन. बड़े गोल क्या होते हैं? मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, या मैं 3 बड़े कंट्री में ट्रैवल करना चाहता हूँ, या आप कह सकते हैं मुझे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, या मुझे 5-10 बेडरूम्स का एक बंगलो चाहिए. ये होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स. देन रिव्यू एंड रिफाइन. मेक श्योर ईच गोल इज क्लियर एंड एक्शनेबल. हर एक गोल आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर और एक्शनेबल, मतलब उसके ऊपर आप एक्शन कर पाए ऐसा गोल बनाइए. इफ नीडेड ब्रेक डाउन लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर. अगर लार्जर गोल एक बारी में नहीं अचीव हो रहा है या नहीं कर सकते हो तो उनको ब्रेक डाउन करिए इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल स्टेप्स. छोटे स्टेप्स लेना शुरू करिए. जब छोटे स्टेप्स लेंगे तो बड़े स्टेप पे अपने आप पहुंचेंगे, राइट? देन द पॉइंट कम्स, राइट अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू अचीविंग दिस गोल्स एंड कीप इट समवेयर विजिबल. आपने गोल तो लिख लिया बट आपकी कमिटमेंट भी चाहिए, राइट? तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे विजन बोर्ड पे ही, मतलब ऐसी जगह पे विजन बोर्ड पे या तो स्पेस बना लीजिए या अलग से बना लीजिए जहाँ पे आपकी ये ब्रीफ स्टेटमेंट होनी चाहिए कि मैं कमिटेड हूँ इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और उसके प्रति आपको जो भी एक्शनेबल स्टेप्स हैं वो आप लेंगे. मतलब अपनी एक कमिटमेंट आपको लिखनी है. जब आप व्हेन यू राइट समथिंग, जब आप लिखते हैं कुछ तो आपकी वो चीजें होती है, वो माइंड रजिस्टर करता है. हाथ लिखते हैं, आंखें देखती हैं, माइंड रजिस्टर करता है. तो whenever you write anything it will, your mind will register. So it is very important to write a brief statement of commitment towards achieving your goals and keep it somewhere visible. Visible भी होना चाहिए, आप पढ़ते रहे आते जाते कि अच्छा मैंने ये लिखा है. ठीक है. So this was about goal setting. Okay. Now अब हम आते हैं अपने इस पे डेली जर्नलिंग पे. व्हाट इज डेली जर्नलिंग? डेली जर्नलिंग मतलब एवरी डे का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना. बिगिन अ जर्नलिंग प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव. आपको जो कुछ भी अचीव करना है उसके लिए आप लिखिए कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसे करना है, और जो जो आप स्टेप्स लेते रहेंगे वो भी आपको लिखना है. जैसे चूज अ जर्नल, सिलेक्ट अ नोटबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर योर जर्नलिंग प्रैक्टिस. नोटबुक ले सकते हैं आप, ऑनलाइन को डिजिटल जैसे नोट्स बना लिया, कुछ करना है वो कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. सेट असाइड टाइम, डेडिकेट 10 to 15 मिनट्स ईच डे फॉर जर्नलिंग. हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम आपको रखना है डेडिकेटेडली कि उस टाइम आप जर्नलिंग करें. आइडियली डू दिस एट द सेम टाइम ईच डे. यस, आपको मतलब आइडियल सिचुएशन है कि आपको हर रोज सेम टाइम पे काम करना चाहिए सो दैट आपकी एक हैबिट बन जाए. जब कोई चीज आपकी हैबिट में आ जाती है तो वो कंसिस्टेंट होती है, और कंसिस्टेंसी इज द की टुवर्ड सक्सेस, राइट? तो एक ही टाइम रखिए, कोशिश करके 10 से 15 मिनट की बात है. कोई भी जब आपको लगता है कि मैं रात को ये टाइम रखूं, मैं सुबह रखूं, दोपहर में रखूं, जब भी आपको लगता है फिक्स टाइम रखिए, कोशिश जरूर कीजिए. ओके. देन फोकस ऑन क्लैरिटी. ईच डे राइट अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव. हर रोज लिखिए आपको क्या अचीव करना है. दिस कैन इंक्लूड डेली इंटेंशन, रिफ्लेक्शन ऑन योर विजन बोर्ड, प्रोग्रेस ऑन योर गोल्स एंड एनी ऑब्स्टेकल्स यू एनकाउंटर. ये आपके
गोल्स के बारे में हो सकता है, प्रोग्रेस कितनी हुई उस बारे में हो सकता है, कोई ऑब्स्टेकल आए आपको, कोई अड़चन आई है, दैट कैन बी, यू कैन राइट दैट, है ना। तो आपको क्लैरिटी होती रहेगी इन चीजों के बारे में। अब जैसे फोकस ऑन क्लैरिटी में पॉइंट्स आते हैं आगे, आप लिख सकते हैं, सॉरी टू बी व्हाट, what do you truly want in your life? I'll just correct it first. What do you truly want in your life? ये आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये आप नोट करिए। व्हाट आर योर कोर वैल्यूज, वैल्यूज क्या है आपके, क्या पैशन है वो लिख सकते हैं। व्हाट मेक्स यू फील फुलफिल्ड एंड हैप्पी, किस काम को करने से या किस चीज से आपको फुलफिलमेंट होती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है और आप खुश होते हैं। ठीक है, व्हाट एरियाज ऑफ योर लाइफ फील अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, और लाइफ के कौन से एरियाज हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं है और आपको कंफ्यूजन है। ये सब जब आप लिख लेंगे ना, आपको ये बहुत 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 बड़ी हेल्प करेगी आपको आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें प्रॉब्लम है कहाँ। राइट, वंस वी नो दैट वी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम, हमें वो नहीं पता होता इसलिए सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये भी कर लिया, डेली जर्नलिंग कर ली। अब हम आते हैं प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस में। यूज प्रॉम्प्ट्स टू गाइड योर जर्नलिंग, आपको जर्नलिंग करने के लिए ये क्वेश्चंस काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड आई डू टुडे दैट मूव मी क्लोजर टू माय गोल्स। जब आप एक्टिविटीज कर लेते हैं सारे दिन की एंड आप लिखते हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं कि आज मैंने क्या किया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या चैलेंजेस आई, कितना प्रोग्रेस हुआ, वहां पे आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट डिड आई डू टुडे दैट मूव मी क्लोजर टू माय गोल्स। आप लिख सकते हैं कि मैंने आज क्या ऐसा किया जिससे मैं अपने गोल्स के क्लोजर चला गया। व्हाट चैलेंज डिड आई फेस एंड हाउ डिड आई ओवरकम देम, मेरे को क्या चैलेंजेस आए और मैंने उनको कैसे ओवरकम किया, वो सब आप लिखिए। जर्नलिंग इसी को कहते हैं। देन व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे, मुझे आज ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ। हमेशा जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे आपको यूनिवर्स उतने चांसेस देगी कि आप और ग्रेटफुल हो सके, और चीजें मिलेंगी, और चीजें मिलती रहेंगी जिससे आपको एवरीडे आप कहोगे आज मुझे इस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, आज इस चीज के लिए। मतलब जब आप ग्रेटफुल होते हो तब आपको यूनिवर्स वो मौका देता है और चीजें देकर कि आप और ग्रेटफुल हो। तभी मैंने स्टार्ट ऑफ द जर्नी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से शुरू कराया आप लोगों को, क्योंकि इट इज अ मस्ट। आपको हर कदम पे हमें जितना कुछ मिला है, जो बहुत लोगों को इतना भी नहीं मिला है, तो हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। राइट, सो दिस वाज द प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। देन आपको क्या करना है, डेली रिफ्लेक्शन। व्हाट न्यू इंसाइट डिड यू गेन अबाउट योरसेल्फ, ये आपको लिखना है कि आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है, हाउ डिड यू फील आफ्टर टुडेज एक्टिविटी, आज की एक्टिविटी के बाद आपको कैसी फीलिंग आई, वो लिखिए। व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टुमारो टू कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन दिस क्लैरिटी, कल आप कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ये क्लैरिटी और बढ़े। सो ये सब चीजें आप एट वन गो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपने एक्टिविटी की। राइट, आपने एक्टिविटी की, आपने सारे आपने विजन बोर्ड बनाया, गोल सेटिंग की, डेली जर्नलिंग, प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, ये सब जब आप कर रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चंस है ना, इनका जवाब देने में, इनके ऊपर क्लैरिटी लेने में आपको इजी रहे। तो आप हमेशा प्लीज कंप्लीट द होल टास्क एट वन गो। कोट ऑफ द डे, व्हाट इज दैट, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट थॉट। यस, क्लैरिटी कैसे आती है, जब हम कुछ करते हैं तो हमें पता चलता है, क्लैरिटी मिलती है। यहाँ सोचते रहने से कोई क्लैरिटी नहीं लगेगी। टिल द टाइम आई वाज सिटिंग आई वाज नॉट क्लियर अबाउट माय लाइफ, कि मुझे लाइफ में क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी भी कोई ड्रीम्स है, आई हैव सम डिजायर, आई डिडंट नो। आई स्टार्टेड जॉटिंग डाउन एंड आई स्टार्टेड गेटिंग क्लैरिटी कि विच वे आई शुड मूव, व्हाट इज माय पैशन। तो क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन, आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। भूख लगी है, खाना नहीं खाओगे, एक्शन नहीं लोगे तो भूख तो नहीं मिटेगी ना। सेम वे, एनीथिंग, आपको गर्मी लग रही है, उठ के स्विच ऑन करोगे तभी फैन चलेगा, तभी हवा आएगी। तो एक्शन तो लेनी है, और क्लैरिटी भी कब आती है, एक्शन से आती है, सोच से नहीं आती। ठीक है, सो दिस वाज माय screen. Now, this is the first step in the 30 days channel, and let's wrap up day one. So that wraps up the day one of our 30-day life transformation challenge. Today, we have taken very, very crucial step to gain clarity and set our vision for our life. Remember, clarity is the foundation of any transformation. Take some time tonight to reflect on these insights you gained today. How did you feel? What new perspective have emerged? Keep your vision board visible somewhere where it keeps you reminding of your vision, of your goals, of your aspirations. Okay, tomorrow I'll come with day two I'll come with a new challenge for my second day of this challenge, and new activities will be designed to build on today's work. So make sure to like and subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't lose on any updates. You should not miss out on any updates. And if you found today's activities helpful, please leave a comment and share your experience. I would love to have learn about your journey and any breakthrough you have had. ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का आपको चेंज मिला है आज की एक्टिविटी देखने के बाद, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर, अगर थोड़ा सा भी किसी की लाइफ में अगर चेंज आता है इस एक्टिविटी को करके, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। ऑल्सो ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑन इंस्टाग्राम, शेयर योर विजन बोर्ड, आप अपना विजन बोर्ड शेयर कर सकते हैं वेयर यूजिंग द हैशटैग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। लेट्स इंस्पायर ईच अदर, एक दूसरे को इंस्पायर करने का काम भी करते हैं। इट्स अ नोबल थिंग टू डू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, for committing to this journey of transformation. Remember, each day, each step you take brings you closer to
a life you always wanted to have, you always desired. So I'll see you tomorrow with day 2 challenge. Stay motivated and keep moving forward. May God bless you all. Thank you.